انتہائی اختصار کے ساتھ شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیتا ہے. محسن نے ایک شعر پڑھا کہ باپ اور بیٹے نے ناممکن کو ممکن کر دیا, ڈوبتا سورج اور گل کا پلٹنا ایک ہے. بس ایک مصرے میں فضائل و مصائب دونوں بزرگان محترم کہ ان دونوں میں مماثلت ہے کیا. باپ نے سورج کو ڈوبنے کیوں دیا اور اس کے بعد پلٹایا کیسے. تاریخ کے ورق پر ایک کہانی رقم ہے کہ یہودی کے باغ میں کام کرنے کا باقاعدہ ایگریمنٹ سائن ہوا. یہ مولائے کائنات کا ظرف ہے کہ وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو پوری کائنات کا مولا ہے اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے اور اس سے واقعہ کیا منسلک ہے. بچوں کے لیے بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. وہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا اس میں وقفہ نماز کہیں نہیں تھا, نماز پڑھنے کی دورانیہ کا وقفہ کہیں نہیں تھا, کیونکہ معاہدے میں دستخط ہو چکے تھے. لہذا مزدوری کرنے کے بعد نماز کے لیے تیزی سے پلٹے وہاں جہاں نماز سکھانے والا بیٹھا تھا. مسجد میں وہ بیٹھا تھا جسے نماز سکھائی. وہاں مسجد میں داخل ہوئے, رسول دیکھ رہے ہیں کہ علی تیزی سے جا رہے ہیں کہ نماز ادا کرے. لیکن میری ان باتوں کو کوئی اور رنگ نہ دیجیے گا, تاریخ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. گزرتے ہوئے علی کو رسول نے دیکھا. جو مزاج سمجھتا ہو علی کا, وہ علی کا انداز نہ سمجھتا ہو کہ علی کیا کرنے جا رہا ہے. علی تیزی سے محراب کی طرف جا رہے تھے کہ اس نے جس نے نماز سکھائی اس نے آواز دی, یا علی کھجور کھاؤ گے, یا علی کھجورے کھاؤ گے. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, کہا یا رسول اللہ آپ کھلائیں اور علی نہ کھائے. سماعتوں کو تھوڑی سی مجھے تھوڑی اجازت مطلب بالکل واقعہ پورا اسی طرح بیان کر رہا ہوں. نماز کی طرف بڑھتے ہوئے علی, جب رسول نے آواز دی یا علی کھجور کھاؤ گے, کہا یا رسول اللہ آپ کھلائیں اور علی نہ کھائے. رسول نے کھجور پیش کی, علی نے وہ کھجوریں کھائیں. رسول پہلے کھا چکے تھے. پھر رسول نے ایک اور کام کیا, وہ جو نماز پڑھنے علی جا رہا تھا اس کے زانو پہ سر رکھ کر سو گئے. وہ جو نماز سکھانے آیا تھا, میں نے پہلے گزارش کی کہ واقعے کو واقعے کی طرح سنیے گا, بعد میں اس کی رنگ آمیزیاں نہ کیجیے گا جو تاریخ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. رسول نے علی کے زانو پہ سر رکھا, ادھر زانو پہ سر رکھا, ادھر رسالت پر غنود کی طاری ہوئی. پتہ نہیں یہ علی کے زانو کا لمس تھا یا محبت کا خمار تھا کہ رسالت آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی. علی کو چاہیے تھا نا بزرگان محترم کہ جلدی سے سر ہٹا کر کوئی تکیہ سرانے لگا دیتے, وہ جو نماز قضا ہو رہی اسے پہلے پڑھ لیتے. وہ نماز قضا ہو گئی, چہرے رسول کی زیارت کرتے رہے علی. سورج اپنے وادی میں غروب ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. رسول کی آنکھیں کھلی, کہا یا علی تم نے نماز نہیں پڑھی. کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے عبادت کیا ہے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا. تو جو رکھی جہاں تک زحمت دینا چاہتا ہوں, کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ علی تیری کوئی نماز قضا ہو جائے, اس لیے کہ دنیا کو چاہیے ہوگا کوئی ایسا طریقہ جو تیرے کردار پر ضرب لگائے. بغض علی کی کروٹیں آج تک ختم نہیں ہو سکی بزرگان محترم. کہا اے علی یہ ہو نہیں سکتا. سوال جس کے لیے ساری زحمت دی ہے کہ آفتاب کو پلٹانے کا مقصد ہے, یا رسول اللہ آپ اشارہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا آپ کے اشارے سے آفتاب نہیں پلٹ سکتا تھا؟ کہا نہیں علی تم اشارہ کرو, جس کے لیے غروب ہوا ہے وہ اشارہ کرے. یا رسول اللہ یہ زحمت آپ گوارا کر لیتے. کہا نہیں علی تم اشارہ کرو. وہ جو زانو پہ رسالت کا سر رکھے ہوئے تھا اس نے ڈوبے ہوئے آفتاب کو اشارہ کیا. آفتاب پلٹا, نمازیں پڑھ کر جانے والے پلٹے. ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہیں, یہ روشنی کہاں سے نکلی انہیں کیا پتا. ولائے علی کی کرنیں کہاں سے نمودار ہوتی ہیں. علی نے اپنی نماز مکمل کی. وہ جو آفتاب پلٹ چکا تھا
डूब चुका था, नामुमकिन चीज थी, उसे अली ने इशारे से मुमकिन बना दिया। बस फजाइल के बाब में डूबते सूरज को अली ने इशारे से पलटा दिया। आज तक अक्ल को समझ नहीं आ रही कि इशारे से आफताब पलटा कैसे। अपनी अक्ल से अली को समझोगे तो इधर उधर की ठोकरें खाओगे। जो अली तुम्हारी अक्ल में आ जाए वो कम से कम मेरा अली नहीं हो सकता। इशारे से आफताब को पलटाया। देखिए ममासरत देखिए, शायर का कमाल देखिए। वो जो मंबे नूर है वो शाम की वादियों में खो गया, अली के इशारे से दोबारा मुनव्वर हुआ। फर्क है अली के पलटाने में और हुसैन के पलटाने में। लगा में फरस पे हाथ आया, कहा ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। वहां फौरी इशारा था पलटाने का, यहाँ इशारा पहले है असर बाद में है। वो जो साथ साथ चल रहा था, कहा कि नमाज पढ़ो मेरे साथ, मैं नमाज के लिए खड़ा हो रहा हूँ। कहा या फर्जंद रसूल आप अपनी नमाज पढ़ें, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ। दिल पर एक बोझ है। उसके बाद जब लगाम फरस पे हाथ डाला कि मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, उस वक्त खुल्क अजीम के नवासे ने एक जुमला कहा था कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे। अरबी जबान में ये अच्छे लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन तुम्हें क्या पता हुसैन जो लफ्ज इस्तेमाल करे उसका मकसद क्या है, उसके पीछे कारनामा क्या है। कहा तेरी माँ तेरे गम में बैठे। बस इतना जुमला सुना, खुद ने कहा ऐ हुसैन मैं भी आपको यही जवाब देता अगर आपकी माँ फातिमा ना होती। वो जो शाम की वादियों में गर्क हो रहा था ना, उस पर एक जुमले ने असर किया। ऐ हुसैन मैं भी आपको यही जवाब दे सकता था अगर आपकी माँ फातिमा ना होती। बस जवाब देने के बाद अब हुर का लहजा वो लहजा नहीं रहा, सर को झुकाए हुए है। काफिले को ले तो आया लेकिन सर झुका हुआ है, उस तरह गुफ्तगू नहीं कर रहा। करते करते वो वक्त आ गई कि जब शब आशूर आई, 8 मुहर्रम की रात आई। कहा ये जंग रुक नहीं सकती। काफिले कासिद को भेजा, पेशरे साथ से मुलाकात की कि किसी तरह ये जंग रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी। बुजुर्गान मोहतरम उधर जो आफताब को पलटाने वाला है उसने एक जुमला कहा, अबुल फजल अब्बास जाओ इस फौज को एक रात की मोहलत दे कर आओ, इसलिए कि कोई हमारा गौहर आबदार उधर छुपा हुआ है। तो जो रखिएगा बुजुर्गान ग्रामी, वो जिसे उम्मुल बनीन ने करबला के लिए पाला था उसे क्या कह रहा है हुसैन कि जाओ अब्बास एक रात की मोहलत लेकर आओ। उलमाए कराम ने इसी तरह बयान किया है। घोड़े पे अब्बास बैठे, उधर मिजाजे हुसैन समझ रहे हैं कि अब्बास जा तो रहा है लेकिन सर झुकाए हुए। कहा ज़ुहैर तुम भी साथ जाओ, हबीब तुम भी साथ जाओ, ऐसा ना हो मेरा शेर कहीं बिफर जाए। अब्बास गए, जाके एक रात की मोहलत दी। वापस पलटे ना तो हबीब ने मज़ाहिर ने कहा ज़ुहैर याद करो मौला ने कहा था ना कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो मेरी शजाअत का वारिस हो। इधर ये जुमला सुना, उधर अली के बेटे ने अंगड़ाई ली। एक दफा बंदे कबा टूटी, रकाबे टूटी। कहा हबीब मेरी शजाअत को आजमाना चाहते हो, लो मैं यहीं ठहरा, मुझे मेरे मौला से इजाजत दिला दो। अगर शाम तक दारुल इमारा पर हुसैनी परचम न लहरा दिया तो अली का बेटा न कहना। आवाज बुलंद हुई, हुसैन खैमे से निकले। किसने छेड़ा है मेरे शेर को? अब्बास की गर्दन में बाहें डाली। इधर हुसैन की बाहें आई, हुसैन अब्बास ने सर झुका लिया। मौला जो तेरी रजा, जो तेरा हुक्म, तो चू चाहे बस रहमत तमाम बुजुर्गानी गिरामी। वो जो जुमला कहा था ना तेरी माँ तेरे गम में बैठे, शब आशूर ढलने लगी, आखिरी पहर में पहुंचा। एक आवाज आई, हुर को आवाज आई जैसे कोई बीबी कह रही थी ऐ हुर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। बेचैन होके हुर उठा, अपने खैमे में घबरा के उठा, चारों तरफ देखने लगा ये आवाज किसकी है। ये वो जमीर की आवाज है जो करबला के सूरज को पलटाने वाले हुसैन ने कहा था। ये आवाज किसी माँ की आवाज थी, ऐ हुर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। बस इस आवाज का आना था। हुर खैमे से निकला, दरवाजे पे पहुंचा, देखा गुलाम खड़ा है। कहा आका कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं उसके कदमों पे जा रहा हूँ जिसे हुसैन कहते हैं, वहां जा रहा हूँ जिसे हुसैन कहते हैं। गुलाम ने कहा मौला मुझे भी साथ ले जाइए। कहा मैं तुझे आजाद करता हूँ, मिजाज शनासे हुसैन देखिए। गुलाम ने हाथ जोड़ के कहा अच्छी आका नवाजी है, जब तक दुनिया नजर आती रही मुझे अपना गुलाम बनाए रखा। अब जो 2 कदम पे जन्नत है तो मुझे आजाद कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ
आज जाऊंगा। हुर का बेटा चला, रहमत तमाम बुजुर्गान गिरामी। इधर से वो डूबा हुआ आफताब पलटा, उधर हुसैन ने कहा भैया अब्बास अलम का फरेरा खोल देना, बेटा अली अकबर मेरा मेहमान आने वाला है। जनाब कासिम घोड़े पे सवार हुए, अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, अब्बास ने अलम थामा। हुसैन बार बार लश्कर आदा की तरफ देख रहे हैं कि कोई मेहमान आ रहा है। यक बयक सफेद सहर नमूदार हुई। उर को जब हुसैन नजर आए, फिर उर घोड़े पे नहीं बैठा रहा, अपने आप को जमीन पर गिराया, जेब से रुमाल निकाला, हाथों को बांधा, कोनियों के बल चलते हुए हुसैन के कदमों पे पहुंचा और एक जुमला कहा, ज्यादा गुफ्तगू नहीं की, फातिमा के बेटे हुर का गुनाह माफ कर दो, फातिमा के बेटे हुर का गुनाह माफ कर दो। बस ये जुमला सुना, दोनों हाथों से हुसैन ने हुर को उठाया, सीने से लगाया, कहा भैया हुर मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। जैदी साहब के जुमले, अब जो कहा ना भैया हुर, अली अकबर घोड़े से उतर आए, कासिम घोड़े से उतर आए, चाचा हुर हमसे गुस्ताखी हो गई, हमसे गुस्ताखी हो गई, बाबा का भाई जमीन पर हम घोड़े पे सवार थे। एक दफा सीने से लगाया, हुर को मुबारकबाद दी। हुर तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। बस बुजुर्गान गिरामी सीने पे हाथ रखकर आइए उस बीबी को पुरसा दे। ये आवाज जब बुलंद हुई ना, जनाबे ज़ैनब के कानों से टकराई, इशारे से बुलाया, फिजा क्या बात है? कहा शहजादी वो जिसने रास्ते में लगामे फरस पे हाथ डाला था ना, वो हुर आया है। बुजुर्गान गिरामी शहजादी ने जुमला सुना, जवाब नहीं दिया। खेमे से दो बच्चे निकले, एक हुर के दाएं तरफ खड़ा हुआ, एक हुर के बाएं तरफ खड़ा हुआ, और क्या कहा, मामू हुर अम्मा ज़ैनब ने सलाम कहा। बस ये जुमला सुनना था, हुर की हड्डियां चटकने लगी, चेहरे के रंग से अंदाजा लगाया, क्या बात है, क्या बात है भैया हुर? कहा मौला आपने तो माफ कर दिया, लेकिन मुझे याद है जब मैंने लगामे फरस पे हाथ डाला था, महफिल से बीबियों के रोने की आवाज आई थी। मौला जब तक मुझे शहजादी माफ नहीं करेगी, मेरा खता माफ नहीं होगी। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी मंजर बुजुर्गान गिरामी, हुसैन ने हुर का हाथ थामा, कहा भैया हुर घबराओ नहीं। हुर को लाए, खैमे में आए, दरवाजे पे हुसैन, खैमे में ज़ैनब, बाहर हुर। एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब हुर आ गया है, हुर आ गया है। बस बुजुर्गान गिरामी जब कहा ना हुर आ गया है, शहजादी ने क्या कहा, भैया हुर ज़ैनब बहुत शर्मिंदा है, तू ऐसे हालात में आया है जब तुझे बहन पानी भी नहीं पेश कर सकती, लेकिन एक वादा करती है कि हुसैन की लाश से पहले तेरी लाश पर ये बहन जाएगी। बस एक मंजर बुजुर्गान गिरामी, बस एक मंजर, 2 लम्हों की ज़हमत, वो करबला गुजर गई, शाम गरीबा का मंजर आया, इतने में देखा एक रोशनी आ रही है, रोशनी को करीब आते देखा। जब करीब आई क्या देखा, ज़ौजाए हुर खाना और पानी लेकर आई है। शहजादी मैं आपके लिए खाना और पानी लाया। पानी को देखा, कहा ये पानी एक तरफ रख दो, खाना एक तरफ रख दो। ज़ौजाए हुर को कहा तू जमीन पर बैठ जा। ज़ौजाए हुर जमीन पे बैठी, क्या कहा, ज़ौजाए हुर मुझसे हुर का पुरसा ले। बस ये जुमला सुनना था, ज़ौजाए हुर ने सर पीट लिया। शहजादी आप मुझे एक हुर का पुरसा दे रही है, आपके घर से 72 जनाजे निकले, किसी ने आपको अली अकबर का पुरसा नहीं दिया, किसी ने आपको हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह जो बीमार में शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा, जो मफरूज़ों ने कष्ट से निजात दिला, परवरदिगार इन आंसुओं को बारगाह जनाब सैयदा में शरफ खूब अता फरमा। परवरदिगार का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हम फरशैदा पर अपनी खाली झोलियाँ लेकर आए हैं, मादर हुसैन के सदक़े में हमारी झोलियों को भर दे। जो मुसाफिर हैं, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कैदोबंद की सोबतों में परवरदिगार तुझे बीमार करबला का वास्ता, तुझे बीमार करबला की हथकड़ियों और बेड़ियों का वास्ता, तुझे जिंदान शाम की असीरी का वास्ता, उनको रिहाई अता फरमा। परवरदिगार बीमारों को शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा। इश्तियाक़ ज़ई साहब इस महफिल हदीस के साकिबानी परवरदिगार उन्हें जवान जनाब सईदा में जगह अता फरमा, दरियात आलिया अता फरमा, साहिब खाना की मुरादों को